نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ لاہور میں کرونا وائرس کے 1408 کنفرم مریض ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ 45 روز کے دوران 46 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ پنجاب سے کرونا وائرس کے 204 نئے کیسز۔ کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 5730 ہو گئی ہے۔ صوبے میں اموات 95 ہو گئیں۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق 768 زائرین سینٹرز، 1925 ڈرائیو ان سے منسلک افراد، 86 قیدیوں، 2951 عام شہریوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کیمپ جیل لاہور میں 59، سیالکوٹ 3، گجرانوالہ 7، ڈی جی ہاں 9، جہلم میں 3، بھکر 2، فیصل آباد، قصور اور حافظ آباد میں ایک قیدی میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ شہروں میں سب سے زیادہ لاہور میں کرونا وائرس کے 1408 کنفرم مریض ریکارڈ کیے گئے، جبکہ ننکانہ 13، قصور 58، شیخوپورہ 19، راولپنڈی 296، جہلم 55، اٹک 19، چکوال 4، گجرانوالہ 154، سیالکوٹ 113، ناروول 15، گجرات میں 228 شہریوں میں تصدیق۔ حافظ آباد 28، منڈی بہاؤالدین 30، ملتان 69، خانیوال 6، وہاڑی 49، فیصل آباد 57، چنیوٹ 11، ٹوبہ 7، جھنگ 38، رحیم یہاں 65، سرگودا میں 53 شہریوں میں تصدیق۔ میاں والی 20، خوشاب 13، بھکر 10، بہاول نگر 12، بہاولپور 19، لودھرا 4، ڈی جی ہاں 26، مظفر گڑھ 23، لیا 2، ساہیوال 2، اوکاڑا 18، پاک پتہ میں 7 کنفرم مریض ہیں۔ کورونا وائرس سے اب تک کل 95 اموات، 1380 افراد صحت یاب، 22 مریض تشویشناک حالت میں ہیں۔ ترجمان کے مطابق اب تک کل 75229 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کرونا وائرس لاہور پولیس میں پنجے گاڑنے لگا۔ ایس ایچ او رائیونڈ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ لاہور پولیس کے اہلکاروں کے بعد ایس ایچ او رائیونڈ بھی کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایس پی رائیونڈ رضا تنویر کے مطابق ایس ایچ او رائیونڈ کا علامات ظاہر ہونے پر کورونا ٹیسٹ کروایا گیا تھا، جبکہ ریزلٹ پازیٹیو آنے پر ایس ایچ او رائیونڈ کو قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایس ایچ او کے ساتھ ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں کے ٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل لاہور پولیس کے 7 اہلکار اور 2 ٹریفک وارڈنز بھی کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ کسٹم ہاؤس میں تعینات انسپیکٹر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ صدر کسٹم ایسوسی ایشن امیر حیدر نے کسٹمز ہاؤس کو سیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کسٹم ہاؤس میں تعینات انسپیکٹر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے۔ انسپیکٹر کسٹم ارشاد احمد کو ایکسپو سینٹر میں قائم کوارنٹین سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کسٹم ایسوسی ایشن کے صدر امیر حیدر نے کسٹم ہاؤس کو فی الفور سیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صدر کسٹم ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ کسٹمز ہاؤس کو ڈس انفیکٹ کروا کر اسٹاف کے ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔ لاک ڈاؤن کے باوجود کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ شہر میں سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت سیل کیے گئے گھروں کی تعداد 1222 ہو چکی ہے۔ گھروں میں قرنطینہ کے لیے کیے گئے شہریوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 1222 گھروں کو سیل کر کے قرنطینہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ شہر کے سیل کیے گئے گھروں میں 5060 افراد کو مکمل لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کی دستاویزات کے مطابق 5060 شہریوں کے ٹیسٹ کا عمل بھی جاری ہے۔ پنجاب سمال انڈسٹری ہاؤسنگ سوسائٹی میں 45 گھروں کو سیل کیا گیا، جبکہ 220 افراد مکمل محصور ہیں۔ سکندریہ کالونی کے 80 گھروں میں 371 افراد، شاہ میرا کے 35 گھروں میں 175 افراد کو لاک ڈاؤن کیا گیا۔ بیگم کوٹ میں 29 گھروں کے 99 افراد، جبکہ شادرہ کے 36 گھروں میں 182 افراد کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ہوپ روڈ پر 21 گھروں میں 113 افراد کو لاک ڈاؤن کیا گیا۔ انجن شیڈ ریلوے میں 60 گھروں میں 241 افراد، گڑی شو میں 171 گھروں میں 419 افراد، ایم ای ٹی کالونی 2 میں 178 گھروں میں 381 افراد کو قرنطینہ کیا گیا۔ رحمان پورہ کے 20 گھروں میں 100 افراد، بٹا چوک کے 35 گھروں میں 210 افراد کو، جبکہ رستم پارک کے 25 گھروں میں 140 افراد کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ شادرہ کے 20 گھروں میں 120 افراد، چائنا اسکیم کے 55 گھروں میں 270 افراد، گلشن راوی کے 81 گھروں میں 471 افراد، جبکہ ٹاؤن شپ کے 61 گھروں میں 311 افراد کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ مال ٹاؤن کے 35 گھروں میں 171 افراد، راج گڑھ کے 21 گھروں کو سیل کیا گیا، جبکہ 241 افراد کو قرنطینہ کیا گیا۔ فرخ آباد شادرہ کے 37 گھروں کو لاک ڈاؤن کیا گیا، جبکہ 179 افراد کو قرنطینہ بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح حنیف پارک میں 41 گھروں میں مقیم 196 افراد کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔
स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत सील किए गए तमाम घरों के बाहर पुलिस की नफरी तैनात की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते लॉकडाउन किए गए घरों की तादाद 1034 थी, जबकि 3309 अफराद को करंटीना किया गया। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा है कि कोरोना वायरस के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले तिबी अमले को 1 माह की ज़ायद तनख्वाह दी जाएगी। जान की बाजी हारने वालों को शहादत का दर्जा और 4 से 8 मिलियन का पैकेज दिया जाएगा। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील ऐवान और प्राइमरी हेल्थ कैप्टन ट्राइब मोहम्मद उस्मान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि सूबे में 75,229 टेस्ट हुए, 7 लैब्स फाल हैं, जबकि मजीद 3 लैब्स बनाई जा रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया कि तिबी अमले को 1 माह की जायद तनख्वाह दी जाएगी और शुहदा के लिए 4 से 8 मिलियन का पैकेज मुख्तस कर दिया है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर नबील ऐवान ने कहा कि डॉक्टर्स फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, उन्हें खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। सर्विसेज हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट ICU कायम कर दिया गया है। प्रोफेसर कामरान चीमा और उनकी टीम ने प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज की निगरानी में जदीद तर्ज का ये मुनफरिद ICU कायम किया है। ICU में क्या क्या सहूलियात फराहम की गई हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में प्रोफेसर कामरान चीमा और उनकी टीम ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट ICU कायम किया है। प्रिंसिपल महमूद अयाज की ज़ेरे निगरानी पब्लिक सेक्टर में बनने वाला ये जदीद तर्ज का मुनफरिद ICU है। ICU 32 बेड्स और 32 वेंटिलेटर्स पर मुश्तमिल है, जिससे पेशेंट सेफ्टी के जदीद तकाजों मसलन मॉनिटर, वेंटिलेटर, नेगेटिव प्रेशर एनवायरनमेंट से हमाहंग करने के साथ साथ आलूदा तिब्बी फुजलात की तल्फी का मौसर इंतजाम भी किया गया है। ICU में नस्ब तमाम मशीनों और तिबी आलात को कंट्रोल रूम से मॉनिटर करने का इंतजाम भी मौजूद है। इस तरह ये अपनी तर्ज का मुनफरिद ICU होगा, जिसमें कंट्रोल रूम में बैठकर मरीज की हालत जांचने के लिए वेंटिलेटर और कार्डियक मॉनिटर को देखा जा सकता है और सीनियर डॉक्टर भी बराह रास्त इसे देख सकते हैं। इससे न सिर्फ डॉक्टर्स इन्फेक्शन से बचेंगे, बल्कि रिसर्च के लिए साजगार माहौल भी दस्तयाब होगा। तमाम अमले को मुकम्मल हिफाजती किट्स फराहम की गई हैं। हिफाजती किट उतारने के बाद क्लोरीन मिस्ट का भी इंतजाम है। इस ICU में डॉक्टर्स और नर्सेस की तरबियत के लिए जदीद कोर्सेज करवाए गए हैं और ये कोर्सेज माहाना बुनियादों पर करवाए जाते रहेंगे, ताकि मुल्क में ICU के डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी को पूरा किया जा सके। शहर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने शहरियों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शहर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आज भी लीमू 400 रुपए से लेकर 550 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। माह रमजान का चौथा रोजा शहर में लीमू 400 रुपए से 550 रुपए, लहसुन 300, अदरक 400 रुपए, आलू 60 से 70 और प्याज 60 से 70 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे, जबकि फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करती रहीं। अमरूद 200, केला 150 से 200, सेब 200 से 400 और खरबूजा 60 से 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। सब्जी और फल फरोशों का कहना है कि असल मुनाफाखोर सब्जी और फ्रूट मंडियों में बैठे हैं। अगर सब्जियों की कीमतों में कमी करनी है तो इस मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाना होगी। हुकूमत को सबसे पहले मंडी में कंट्रोल करना चाहिए, वो वहाँ पे करते नहीं है। DCL और जाते हैं वहाँ पे बैठ के कैंप में, फाइल खोल लिया, आगे घंटा 2 बैठे वापस चले गए, कोई कंट्रोल नहीं होता। आगे पर्ची इधर रेडी वालों पे हो जाते हैं, लिस्टें कहाँ, फलां जिनका सब चीज़ें नजला यानी कि रेडी वालों पे गिरता। आगे वो पूछते जी आप महंगे देते, पीछे से महंगा मिलेगा तो इधर महंगे बेचना है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। सिर्फ दावे किए जाते हैं, लेकिन मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नजर नहीं आते। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन सख्त करने का हुक्म दे दिया है। अवाम को अशिया ज़रूरिया की मुकर्ररा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। काबीना कमेटी ब्राइड प्राइस कंट्रोल को हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला ने कहा है कि अवाम को मुकर्ररा नरखों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी में गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने इंतजामी अफसरान को मंडियों में नीलामी के अमल को मॉनिटर करने की हिदायत करते हुए कहा, एंटी होर्डिंग ऑर्डिनेंस 2020 के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। बाबरकत महीने में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया की सरगोबी जरूरी है। वज़ीर आला ऑफिस में तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए होने वाले खुसूसी इजलास में उस्मान बुज़दार ने
نے بریفنگ کے دوران بعض ترقیاتی منصوبوں کی تصاویر دکھا کر متعلقہ حکام کو لاجواب کر دیا. انہوں نے بعض منصوبوں کے ناقص معیار پر شدید اظہار برہمی کیا اور متعلقہ حکام سے باز پرس بھی کی. وزیر اعلیٰ نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو موقع پر جا کر تحقیقات کا حکم دیا. میں خود ٹیمیں بھیج کر ترقیاتی منصوبوں کا خفیہ طور پر جائزہ لے رہا ہوں. عوام کی پائی پائی کے امین ہیں, گھپلے نہیں کرنے دیں گے. عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بروقت اور معیاری تکمیل یقینی بنائی جائے. کرپشن کے بارے میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل کریں گے. پنجاب حکومت نے فلور ملز کے لیے گندم کی قیمت 1375 روپے سے بڑھا کر 1400 روپے فی من کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. حکومت کے فیصلے کے بعد آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 13 روپے مہنگا ہو گیا. حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کی قیمت 1400 روپے من کرنے کے بعد فلور ملز کو سرکاری گندم کا اجرا کی نئی قیمت 25 روپے فی من اضافے کے بعد 1400 روپے فی من ہو گئی. گندم کی قیمت بڑھنے سے آٹے کے 20 کلو کے تھیلے میں 13 روپے کا اضافہ ہو گیا اور 20 کلو آٹے کا تھیلا 805 روپے کی بجائے 818 روپے میں دستیاب ہوگا. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے چیئرمین عبدالرؤف مختار کا کہنا ہے کہ اس وقت فلور ملز کو پرائیویٹ گندم کی خریداری نہیں کرنے دی جا رہی, جس کے باعث فلور ملز سرکاری گندم خریدنے پر مجبور ہیں. ان کا کہنا تھا کہ فلور ملز کو فراہم کی جانے والی گندم کی قیمت میں اضافے کے بعد آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوگا. گورنمنٹ نے جو ویٹ کا ایشو ریٹ ہے 1375 سے بڑھا کر 1400 روپے کر دیا. اسی لحاظ سے جو آٹے کا تھیلا 805 روپے کا تھا وہ 13 روپے بڑھ کر 818 روپے کا ہو گیا. اور پنجاب کے کچھ اضلاع میں جو ویٹ کا کوٹا گورنمنٹ دے رہی ہے, باقی اضلاع میں پرائیویٹ ویٹ مارکیٹ سے فلار مل لیتی ہیں, جس کا ریٹ 1420 سے لے کر 1450 روپے تک ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور ایسے میں آٹے کی قیمت میں اضافہ حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے. کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی, سٹی 42. صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال اور ڈپٹی کمشنر دانش افضال کا بادامی باغ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ. نیلامی کے عمل کا جائزہ لیا. میاں اسلم اقبال کہتے ہیں کہ مصنوعی مہنگائی کرنے والے حکومتی شکنجے سے نہیں بچ سکیں گے. رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مصنوعی مہنگائی اور گراں فروشوں نے پنجے گاڑ لیے. صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے بھی رمضان میں مہنگائی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ رمضان آتے ہی ہر چیز مہنگی کر دی جاتی ہے. گراں فروشوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی. بدقسمتی یہ ہے کہ جب تک کوئی اس طرح کا سخت سٹیپ نہ لیا جائے کوئی بندہ باز نہیں آتا. اب ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں, جو پرائس کو جو نوٹیفائڈ پرائس ہے ڈی سی کی, اس پرائس سے زیادہ بیچے گا, ہمارے پاس 3 سلوشن ہیں: جرمانہ, FIR یا اس کے بعد اسے سیدھا جیل بھیج دیا جائے. صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال اور ڈپٹی کمشنر لاہور دانش افضال نے بادامی باغ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ کیا. کیلے کی نیلامی کا جائزہ لیا. میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ کورونا کے باعث تافتان بارڈر بند ہونے کی وجہ سے لیموں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. کوشش ہے کہ سرکاری نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے. لیمن کی بات کر رہے ہیں تو تفتان کے بارڈر کے ذریعے آتا ہے, کھجور ہے تو تفتان کے بارڈر کے ذریعے آتی ہے, سیب ہے تو وہ بھی ادھر سے آتا ہے. اب کیونکہ کورونا کی وجہ سے بارڈر سارے سیل ہیں, جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ آیا ہوا ہے, لہٰذا وہ بارڈر کھلے گا تو پھر اس کے مطابق جو سپلائی چین ہے وہ مینٹین ہوگی اور پھر اس کے مطابق چیزیں چلیں گی. ڈپٹی کمشنر دانش افضال کا کہنا تھا کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ شہر میں متحرک ہیں, جہاں کہیں شکایات موصول ہوں کارروائی کی جا رہی ہے. گراں فروشوں کا ٹھکانہ جیل ہے. مہنگائی کے ستائے عوام کو اس ماہ مقدس میں ریلیف اور سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کے لیے مجسٹریٹ کی مصروف مارکیٹ میں مستقل ڈیوٹیاں لگانے کی ضرورت ہے, تاکہ گراں فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ ہو اور عوام کو حقیقی ریلیف ملے. کیمرامین احسن کے ہمراہ عثمان علیم, سٹی 42. کورونا وائرس کے دوران افواج پاکستان کا PIA کے خصوصی فلائٹ آپریشن میں مدد کا اعلان. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ PIA عملے کا پروازوں کے دوران کورونا کا شکار ہونے پر ملک بھر کے CMH پہ علاج کیا جائے گا. ترجمان PIA کے مطابق کورونا وائرس کے دوران PIA کی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے. افواج پاکستان نے PIA کی مدد کا اعلان کر دیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے PIA عملے کا پروازوں کے دوران کورونا کا شکار ہونے پر ملک بھر کے CMH میں علاج کا اعلان کیا. PIA کے عملے کا ملک بھر میں قائم کمبائنڈ ملٹری اسپتالوں میں آئسولیشن وارڈز میں علاج ہوگا, جبکہ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے PIA کے عملے کو اندرون ملک پروازیں نہ ہونے کے باعث مختلف شہروں میں پھنسنے پر انہیں پروازوں پر پہنچانے کے لیے
लिए C-130 कार्गो तैयारों में नशिस्तें फराहम करने का ऐलान किया था। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने बर्री और फिजाई सरबराहान के लिए इजहार तशक्कुर किया। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक का कहना है कि इस मुसीबत की घड़ी में तमाम मुल्की इदारों का बाहमी ताउन कौमी ताकत का सबब बनता है। PIA दियारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए खतरों के बावजूद परवाजें चला रहा है। पंजाब के तरक्याती बजट का पहला सॉफ्ट ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कोरोना वायरस की वबा से पंजाब के तरक्याती बजट का हुजूम 50% कम हो चुका है। PND बोर्ड की जानिब से तरक्याती बजट की पहली तजवीज़ इरसाल कर दी गई है। तरक्याती बजट का हुजूम आइंदा माली साल 150 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पंजाब में कोरोना वायरस की वबा से माली बहरान होने के बाद पंजाब के आइंदा माली साल में तरक्याती बजट का फंड 50% कम मुख्तस किया जाएगा। ज़राए PND के मुताबिक माली साल में सिर्फ जारी तरक्याती मनसूबों को शामिल किया जाएगा और नए मनसूबों को आइंदा माली साल के बजट में शामिल नहीं किया जाएगा। ज़राए PND के मुताबिक रियासत बजट कोड 19 के नॉन डेवलपमेंट के लिए मुख्तस होगा। रवां साल पंजाब का तरक्याती बजट 350 अरब रुपये था, लेकिन आइंदा माली साल में 150 अरब रुपये ही सिर्फ तरक्याती बजट के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसमें बेशतर तरक्याती प्रोग्रामों पर अब काम रोक दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुआशी हालात बेहतर ना होने के बाद अब पंजाब को बजट में खसारे का सामना है। अंगूठों के निशानात की तस्दीक के लिए साइलिन की नादरा मेगा सेंटर आमद का सिलसिला जारी रहा। नादरा दफातर न खुलने के सबब एहसास प्रोग्राम सेंटर से रकम का हुसूल नामुमकिन हो गया। ताले देकर साइलिन मायूस लौटने लगे। नादरा तर्जुमान ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया था कि ताहाल दफातर खोलने का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, दफातर बंद रहेंगे। नादरा दफातर ना खोलने के वाज़े ऐलान के बावजूद ताहाल नादरा सेंटर्स में साइलिन की आमद का सिलसिला जारी है। एहसास प्रोग्राम सेंटर्स में उंगलियों के निशानात की तस्दीक ना होने के सबब साइलिन को नादरा सेंटर भेजा जा रहा है। साइलिन कहते हैं कि हुकूमत ने 27 अप्रैल से नादरा दफातर खोलने का ऐलान किया था, लेकिन ताहाल नादरा सेंटर बंद है, जिसकी वजह से वो अमदादी रकम से महरूम रह गए हैं। साइलिन ने मुतालबा किया है कि नादरा सेंटर फिल फोर खोलकर उंगलियों के निशानात की तस्दीक की जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले साइलिन का कहना था कारोबार ठप है। हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली ने अमदादी रकम के लिए भिखारी बना दिया है। यानी कि फ्रॉड किया जाए गरीबों के नाल, गरीब बंदा कितने जाएगा दसो जरा। नादरा सेंटर आने का किसने कहा? सर वही इदारे वाले जो बंदे बैठे ने, जो काउंटर से बैठे ने, जो पैसे दे रहे हैं, और 2 दफा अंगूठा उन्होंने 3 दफा गैप कर जाते हैं, पैसे अपनी जेबां भरते हैं। कोरोना वबा के दौरान अदालतें बिला तातुल काम कर रही हैं। वायरस के शिकार होने वाले जजेस को इलाज मुआवजे में तरजीह दी जाए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से तमाम टीचिंग अस्पतालों के सरबराहों को मरासला जारी कर दिया गया। हाई कोर्ट और मातहत अदलिया के जजेस को इलाज की फराहमी में तरजीह देने की हिदायत की गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस और अमला को हालिया कोरोना वबा में तरजीही बुनियादों पर इलाज मुआवजा फराहम करने के लिए कोटा मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से महकमे की जानिब से जारी मुरासले में कहा गया है कि कोरोना की हालिया वबा के बायस लॉकडाउन के दौरान भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं, जिससे मुअज़्ज़ज़ जजेस और अदालती अमले को तमाम तरह एहतियात के बावजूद कोरोना का खतरा मौजूद है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ के मुरासले में टीचिंग हॉस्पिटल के सरबराहान को हिदायत की गई है कि मुअज़्ज़ज़ जजेस और अमले के इलाज मुआवजे को यकीनी बनाया जाए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन का 36वां रोज। पुलिस ने लॉकडाउन में सख्ती कर दी, मगर शहरी खिलाफ वर्जी करते रहे। शहर में लॉकडाउन के बाद जगह जगह पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई, मगर रमजान मुबारक का महीना होने की वजह से सड़कें आबाद रहीं। जगह जगह नाकों पर तैनात पुलिस एहलकारों की जानिब से डबल सवारी और लोकल ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया गया, जबकि सफर करने वाली फैमिलीज और शहरियों को रोकर घरों में रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई। पुलिस एहलकारों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन शहरियों की हिफाजत के लिए किया गया है, तो शहरियों को चाहिए कि खुद को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए घरों में महफूज रहें। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम फील्ड अस्पताल एक्सपो सेंटर लाहौर के कंसल्टेंट्स की कोविड-19 के बारे में तरबीती वर्कशॉप मुनक्किद की गई। वर्कशॉप का मकसद एक्सपो सेंटर में कायम फील्ड अस्पताल के नए भर्ती होने वाले 45 कंसल्टेंट्स को तरबियत देना था। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किदा वर्कशॉप में प्रोफेसर साकिब सईद, डॉक्टर सलमान अयाज और डॉक्टर आसिफ हनीफ ने शुरका को तरबियत दी। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कोरोना के हाल में तक मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर सफ़े अव्वल के सिपाही की हैसियत से खिदमत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पहले दिन से मरहलावार डॉक्टर्स की तरबियती वर्कशॉप करवा रही है और आने वाले दिनों में भी तरबियती कोर्सेज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। प्रोफेसर साकिब सईद का कहना था कि तरबियती कोर्स से इस्तेफादा करने वाले डॉक्टर्स एक्सपो सेंटर में बेहतरीन अंदाज में खिदमत सर अंजाम देंगे, जिससे मरीजों की बेहतर केयर हो सकेगी। प्रोफेसर बल्कीस शबीर ने कहा कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मियो हॉस्पिटल की तमाम तर कोशिशें इस वबाई मर्ज के खात्मे तक जारी रहेंगी। वर्कशॉप में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एजाज हुसैन, रजिस्ट्रार प्रोफेसर असगर नकी, प्रोफेसर इब्रार अशरफ समेत दीगर भी शरीक थे।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात पर अमल दरामद के सिलसिले में उलमा मशाइख का ताउन काबिल सताइश है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बाबा इरफानी रहमतुल्लाह अलैह सुंदर शरीफ के सज्जादा नशीन पीर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात पर अमल दरामद के सिलसिले में उलमा मशाइख का ताउन काबिल सताइश है। समाजी दूरी ही कोरोना से बचाव का वाहिद और हतमी हल है। उलमा कराम अपने हल्का असर में समाजी दूरी का अवामी शऊर बेदार करने के लिए भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बाबा इरफानी सुंदर शरीफ के सज्जादा नशीन पीर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात पर अमल दरामद के सिलसिले में उलमा व मशाइख का ताउन काबिल सताइश है। समाजी दूरी ही कोरोना से बचाव का वाहिद और हतमी हल है। उलमा कराम अपने हल्का असर में समाजी दूरी का अवामी शऊर बेदार करने के लिए भरपूर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि नमाज और तरावी के लिए वबा के दिनों में घर बेहतरीन मकाम है। तयशुदा हिकमत अमली के मुताबिक ताउन करने पर उलमा व मशाइख के शुक्रगुजार हैं। उलमा व मशाइख से मुशावरत और खिदमात से इस्तेफादा किया जाएगा। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली फरूख हबीब समेत दीगर भी मौजूद थे। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद का शहर की मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा। DIG ऑपरेशंस का जामे मस्जिद ज़िले नबी, जामे मस्जिद दारुल रहमत ते इस्लामपुरा का दौरा किया गया। जामे मस्जिद मुबारक गुलशन रावी, जामे मस्जिद अजीजिया नईमिया लोअर मॉल और मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा किया। नमाज तरावी के दौरान 20 नुकाती SOPs पर अमल दरामद और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। SPs, DSPs, SHOs और मुतल्लिका पुलिस अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। DIG ऑपरेशंस की नमाजी हजरात, मसाजिद इंतजामिया और तैनात पुलिस अमले से भी मुलाकात हुई। 20 नुकाती SOPs की पाबंदी से कोरोना से महफूज रहा जा सकता है। DIG ऑपरेशंस ने इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। शहरियों, उलमा कराम, मसाजिद इंतजामिया का पुलिस से ताउन काबिल तारीफ है। राय बाबर सईद की जानिब से कहा गया। PUFJ और एमरा के ओहदेदारान का सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा। सिटी न्यूज़ नेटवर्क में कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया। सहाफ़ियों के हिफाजती किट्स, ग्लव्स और मास्क पहनकर काम करने को सराहा। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम, सदर PUJ शहजाद हुसैन भट्ट और सदर एमरा आसिफ भट्ट ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा किया। डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम और ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी ने सहाफ़ी तंजीमों के रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम ने सहाफ़ी तंजीमों के रहनुमाओं को सिटी न्यूज नेटवर्क के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया। रहनुमाओं ने कोरोना वायरस से मीडिया वर्कर्स के बचाव के लिए किए जाने वाले सिटी न्यूज नेटवर्क इंतजामिया के इक़दामात को सराहा। सदर PUJ शहजाद हुसैन भट्ट का कहना था कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस एहलकारों के साथ सहाफ़ी भी इंसदादे कोरोना के लिए सफ़े अव्वल में खड़े हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क अपने मीडिया वर्कर्स की बेहतरीन अंदाज में हिफाजत कर रहा है। आज हमने सिटी 42 का जो दौरा किया है उसमें जो हमने देखा है कि जिस तरह लोग मास्क पहनकर, किट्स पहनकर जिस तरह काम कर रहे हैं, तो इस पर मैं बतौर सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये बिल्कुल निज़ाम जो है सिटी 42 का इस वक्त ये म्यारी निज़ाम है और इस निज़ाम से इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा रिलीफ मिलेगा और मज़ीद कोरोना के जो जितने भी ऐसे कोई खदशात हैं वो हमने आके देखे हैं, वो हम समझते हैं ये दूर हो चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने कहा कि जो हिफाजती इंतजामात सिटी न्यूज नेटवर्क ने किए बेहतरीन हैं, दीगर चैनल्स को भी इसकी तकलीद करना चाहिए। आज मुझे यहाँ पर आकर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुतमिन है और हमें पहले भी इत्मीनान था, भी इत्मीनान है कि सिटी 42 एक वाहिद दफ्तर है जिसके अंदर एक छोटे कारकुन से लेकर एडिटर तक, चीफ न्यूज़ एडिटर तक, बिल्कुल कॉपी एडिटर से लेकर मैं समझता हूँ डायरेक्टर न्यूज़ तक सबके साथ एक जैसा सलूक है। सबको किट्स दी गई हैं, सबको मास्क दिए गए हैं और हर 2 दिन बाद किट्स का तब्दील होना, डेली नए मास्क देना, यहाँ पे डॉक्टर का अरेंज होना और दीगर तमाम चीज़ें यहाँ पे सहूलतें मुयसर होना, ये किसी इदारे में ऐसा नहीं है। एमरा के सदर आसिफ भट्ट का कहना था कि कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। सिटी 42 में तमाम जो स्टाफ है उनको किट्स दी गई हैं, उनको ग्लव्स दिए गए हैं, उनको मास्क दिए गए हैं और यहाँ पे आने वाले हर बंदे को जो है वो सैनिटाइज़र किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे इंतजाम हैं। इसी तरह दूसरे जो सहाफ़ती इदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो इसी तरह के इंतजाम करें ताकि जो उनके वर्कर हैं, जो स्टाफ हैं, जो 24 घंटे फील्ड में रहते हैं, वो कोरोना जैसे जो मौजूद वायरस है उससे बच सकें। सहाफ़ी तंजीमों के कायदीन ने मीडिया वर्कर्स की हिफाजत के लिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क के इक़दामात को बेहतरीन करार दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।